بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، آئیے پھر اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ مترو، اجول کو فارم سے کال ہوئی۔ نیزا کو وہ ایک مشن پر بھیج رہے تھے۔ اجول نے طے کر لیا اور نیزا کو فون کر کے بتایا تو نیزا پریشان ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ گھنٹے بعد اجول نے پھر کال کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا، نیزا نے کہا۔ اوکے کہہ کر اجول نے کال بند کر دی اور اپنے دادا کو فون کیا۔ دادا جی، نیزا کو فارم سے کال آئی ہے، وہ ٹال رہا ہے اور وجہ آپ جانتے ہیں۔ میں طے کر چکا ہوں، اسے جلد سے جلد نکلنا ہوگا۔ اوکے پتر، میں بلاتا ہوں اسے، دادا نے تسلی دی۔ ہائے دادا جی، نیزا نے پون کے آغوش میں اپنا آپ گرایا۔ جیتے رہو، دادا نے ماتھا منہ چوما۔ ابا، امی، نیزا نے آواز دی، کنوروں کے ہاں گئے ہیں، عقیقے کٹ رہے ہیں، وہاں تو بچیاں بھی ادھر ہی ہیں، دادا نے بتایا۔ اجول کی امی بھی کنوروں کی بیٹی تھی اور اجول کی بھابھی بھی امی کی بھتیجی تھی۔ یوں کنور اجول لوگوں کا ننھیال تھا۔ نیزا طوفان کیوں نہیں جا رہا؟ دادا نے پوچھا۔ دادا جی، چلا جاؤں گا، پی ہیڈ کوارٹر میں بہت کام ہے، نیزا نے منہ بنایا۔ کام کا مسئلہ نہیں، نایاب سمجھدار ہیں، سنبھال لیں گے، آفر اچھی ہے، وہ زیادہ معاوضہ دے رہے ہیں۔ پونا کے باہر بہت بڑی زمین پڑی ہے، بنجر زمین ہے، میری مرضی ہے وہ ساری خرید لوں، کل بچوں کے کام آئے گی۔ دادا جی، وہ زمین خرچہ مانگتی ہے، اونچی نیچی گھاٹیاں ہیں، پلین کروانے میں رقم کافی خرچ ہو جائے گی، اور دوسری بات سر نایاب اس زمین سے انٹرسٹڈ بھی نہیں۔ دادا نے سنا تو منہ پر چانٹا دے مارا۔ نیزا پر ایک حصے کا، نیزا تم پہلے بھی اس زمین کو رد کر چکے ہو، اگر میں نہ سنوں کہ تم اس زمین کی نفی کر رہے ہو، اور جہاں تک نایاب کا تعلق ہے تو حیدرآباد ہمارا آبائی علاقہ نہیں، خریدی ہوئی زمین ہے تم لڑکوں کی۔ بٹ دادا، یہ پونے کی زمین بھی تو آبائی نہیں، نیزا منہ بنا کر بولا۔ تمہاری یا کشن کی نہیں خریدی ہوئی، بٹ سورج بنسی نے خریدی تھی تو تمہاری اور کشن کی آبائی ہوئی، سمجھے تم؟ پونا میں 4 قومیں آباد تھیں، کنور، چھتری، پانڈے، جاٹ، تو جاٹوں کا نشان مٹ گیا، پونا سے اب 3 رہ گئی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میری بات کہ میں پونا کو 4 ذاتوں سے آباد کروں گا اور چوتھی ذات سورج بنسی ہوں گے، مجھے وہ زمین ہر حال میں چاہیے۔ اچھا، نیزا نے دادا کو بگڑتے دیکھا تو خاموشی اختیار کی۔ چاچی کچھ کھانے کو دیں، نیزا نے دیوار کے پار آواز لگائی۔ لا رہی ہوں پتر، تیرے دادا کے ڈر سے خاموش تھی۔ چاچی نے دیوار کے پار سے کہا اور 2 لڑکے کھانا لے آئے، تھرماس بھی لے آئے۔ نیزا نے چوما، چاٹا، پیسے نکال کے دیے۔ دادا جی نمستے، دونوں نے دادا کو پرنام کیا۔ دادا نے کہا جاؤ، وہ چلے گئے، دونوں کھانے میں لگ گئے۔ کب جا رہے ہو پھر؟ دادا نے پھر پوچھا۔ نیزا نے انہیں دیکھا اور برا سا منہ بنایا تو دادا ہنس پڑے۔ ابھی تو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اسے گئے ہوئے، اجول کو فارنر اتنا ٹائم نہیں دیں گے، دادا نے کہا تو نیزا کا کھاتے کھاتے اور منہ بن گیا۔ کھانا کھا کے وہ چائے پی رہے تھے کہ اجول آ گیا۔ تھپڑ مارا ہے دادا جی نے مجھے، اجول گود میں آ لیٹا تو نیزا نے بتایا۔ اجول نے گال چوم لیا، دونوں وہیں لپٹ کر پڑ رہے۔ بہو آ کے برتن لے جا، یہ دونوں توڑ دیں گے، دادا نے آواز دی اور خود بھی تخت سے اٹھ کے دونوں برتنوں پر ہی لیٹ گئے تھے۔ اجول نے لات مار کر آڑ پاڑ نیچے گرا دیا۔ میں اسے دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی، نیزا نے سینے پر سر رکھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ نیزا بھی بہت دن ہے، فارنر مجھے تنگ کر رہے ہیں، اجول نے زور دیا۔ کہا نا میں نہیں جا رہا، زیادہ اصرار کرتے ہیں تو کینسل کر دو، یا رزق نصیب اللہ اور سبب کریں گے۔ نیزا نے بات ختم کر دی۔ دادا وہ زمین ہر حال میں خریدنا چاہتے ہیں۔ اجول اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیزا نے اس کی آغوش میں سر رکھ لیا۔ دیکھو اجول، میں نے کبھی 1 روپیہ بھی پاس رکھا ہے نہیں نا، تم جانتے ہو سر نایاب کا جھکاؤ حیدرآباد کی طرف ہے اور ان کی مرضی ہے ہم دونوں بھائی وہیں آباد ہوں، لیکن میں نے تمہیں دیکھنا ہے، سر نایاب کو نہیں۔ تو جو دادا چاہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تھوڑا سماں دو، روز آتی ہے، مجھے انڈیا میں نہ پا کر اداس ہو جائے گی، اس کے آتے ہی میں اسے دیکھ کر چلا جاؤں گا، تم مذاکرات کر لو، 14-15 دنوں کی ہی تو بات ہے، نیزا نے محبت سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں۔ اجول نے نیزا کی ہی مانی۔ خفا ہو گئی ہو؟ نیزا فکر سے بولا۔ خفا نہیں ہوا، لیکن کمپرومائز کرنا پڑے گا اب ہمیں کہ تم اب آنکھیں بند کر کے پہلے کی طرح میری بات نہیں مانو گے، تم روز کی مشاورت سے فیصلہ کرو گے۔ اجول طویل سانس لے کر بولا۔ نیزا کا سر جھک گیا، اجول اسے دیکھتا رہا، دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ اجول اپنے باپ اور دادا کے درمیان لیٹا تھا۔ روز میری آئے گی تو تب نیزا جائے گا، اجول نے کہا۔ ٹھیک ہے، 13-14 دنوں میں وہ پلٹ آئے گی، دادا بولے۔ دادا جی میں ایک بات کہوں؟ سنو اجول، اگر تم بنجر زمین والی کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو میں نہیں سنوں گا، تم اکیلے رہ گئے ہو، چھتریوں کے واحد وارث اور تمہارا اور رمل کا واحد وارث نیزا، اور حالات بتا رہے ہیں نیزا کی مہر روزمیری کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، تینوں کی زمین ملا کے کافی ہے، اناج زمین دیتی رہے گی تم تینوں کو، ابھی نیزا کما رہا ہے، کل کس نے دیکھا ہے، کنوروں کے پرکھے کہا کرتے تھے یہ بنجر زمین بہت پیسہ مانگتی ہے اور ہم سورج بنسی کو یہ زمین اناج کے بدل دیں گے۔ سورج بنسی چالاک تھا، اسی زمین پر بند تو گیا مگر پھر مذاکرات پر نہ آیا، تب سے وہ زمین میرے دل میں کھوبی ہے۔
दादा जी आज दिन को नायाब भाई मुझ पर बहुत बिगड़े हैं। खैर है पुत्र, ये तो कमांडर नारायण भी दरमियान में आए तो मैं ना मानूं, वो ज़मीन मुझे हर हाल में चाहिए। मित्रों, निज़ा और उज्जवल घोड़ों पर सवार उन घाटियों में थे। वसी और ज़मीन, पहाड़ी इलाका, खाइयाँ, जा बजा झाड़ियाँ और जंगल बेअबान। उज्जवल, ये जंगल दादाजी क्या करेंगे लेकर? निज़ा परेशान हो गया। मुझे नहीं पता। उज्जवल बेजार हुआ। उसे भी बड़ी कोफ्त हुई थी उस जगह आके। वहाँ जंगली खरगोशों की भरमार थी। दोनों जल्द खरगोशों के शिकार में लग गए। मैरी आ गई तो निज़ा तैयार था, मिलने गया। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। कहीं जा रहे हो? वो पूछती थी। हाँ, फार्मेशन पर जा रहा हूँ। तो पीछे से चले जाते ना, अब तक आने वाले भी होते। मैरी फाड़ खाने वाले लहजे में बोली तो निज़ा ने सर पर हाथ मारा। मेरी अक्ल मारी गई है, वो सटपटा कर बोला। मरो फिर अब, जो मुँह क्या देख रहे हो मेरा? मैरी शदीद गुस्से में थी। निज़ा एक बैग बेड पर रख कर निकल गया। मैरी ने बैग खोला, उसमें 10 करोड़ थे। 10 मेरे, 10 डैड के, 10 उज्जवल के। मैरी ने गिना और उज्जवल को फ़ोन किया। कितना मुआवजा मिला काम का? 35 करोड़, उज्जवल ने बताया। 5 किधर गए? मिशन कठिन है तो 5 उसने अपना सदका दे दिया। ओके कहकर मैरी ने कॉल बंद कर दी। खड़ी रही, फिर बोली, डियर निज़ा, 5 करोड़ तो सिर्फ तेरी लैशेस का सदका है। तेरा बदल तो पूरी कायनात भी नहीं। जियो। उज्जवल ने फ़ोन रखा और कुछ सोचता रहा, फिर बोला, दादाजी ठीक कहते हैं। 5 करोड़ तो मेरे निज़ा की सिर्फ लैशेस का सदका है। निज़ा का बदल तो पूरी कायनात भी नहीं। मित्रों, पवन शास्त्री ने फिर वो सारी ज़मीन खरीद ली और फिर बिल्डोज़र फिरवा कर सब हमवार कर दी और कई जगह पानी निकलवा दिया। बड़ा अरसा ज़मीन पड़ी रही। मित्रों, इतवार की सुबह थी। पवन शास्त्री ने अमृतसर मंडी से शीशम के बीज मंगवाए। शीशम टाली को कहते हैं। और 1.25 लाख गिनती करवाए। उस वक़्त सेन में फरवरी की धूप निकली थी। कालीन बिछे थे और दरमियान में 1.25 लाख गिनती किया बीज पड़ा था। और बीजों के गिर्द इस वक़्त उज्जवल, निज़ा, अखिल, निर्मल, नायाब, सहरीन, यौवन, बाइबल, शफ़क बैठे थे और बीजों पर आयत करीमा पढ़ रहे थे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत पढ़ रहे थे। सब ने सफ़ेद कुर्ते शलवार पहने थे और सर पर सफ़ेद रुमाल बंधे थे। पवन शास्त्री अंदर आया। निज़ा, मैंने तुम्हें कहा था किशन को ले आना, गए क्यों नहीं? दादाजी, बापूजी कहते हैं फ़िक्का से गिटकों पर पढ़ाई साबित नहीं है, ये बिद्दत है। वो पढ़ते हुए मुंह बनाकर बोला। निज़ा पुत्र, मैं और सूरज बड़े ढूंगे बेली थे। उसे रूस से वोल्गा ने पत्र भेजा कि मिलने की सबील करो, खुद आओ या बुला भेजो। वो पत्र लिए मेरे पास आया। सलाहकार, मैंने कहा मैं हनुमानगढ़ जाके खेतों की रक्षा करूंगा, तुम चले जाओ। तो उसने कहा 6 माह तो आने जाने में लग जाएंगे। तो मैंने कहा 6 साल लग जावे, मैं खेतों की रक्षा करूंगा। वो चला गया और 2 साल ना पलटा। मैंने कपास की बुआई कर दी। वो आया तो फसल तैयार थी। कपास चुनेंगी तो अनाज मंदा हुआ, डोडा कमज़ोर था। मैं खुद में नादम हुआ। तो सूरज ने कहा, सोना तेरा दोष ना होवे, भूल मुझसे हुई। कपास का बीज आयत करीमा का विर्द लिए बगैर मुझे उग कर नहीं देता। तो फिर अगले साल बुआई पर मैं जा पहुंचा। बीजों पर पढ़ाई की तो मंडियां भर गई खरे कपास से। हैं दादाजी, तो क्या ये बीज आप बोएंगे? यौवन हैरान हुए। हाँ, सो दिल से पढ़ाई करो। मित्रों, ऊपर से सफ़ेद लिबास पहने प्रिंस आ गए। इन्हें क्यों बुलाया तुमने? अखिल ने पास बैठे निज़ा के ज़ोर से चुटकी ले ली। निज़ा की सिसकारी निकल गई। मनहूस चुटकी निशान छोड़ जाती है, नायाब ने डांटा। डैड के सोल निशान नहीं छोड़ते, मेरी चुटकी निशान छोड़ जाएगी मुंह फट। अखिल ने जवाब दिया कि प्रिंस दरवाजे पर आए तो निज़ा ने तेज़ी से उठ कर स्वागत किया और वेलकम कहते सीने से लगा लिया। उनके सर पर भी रुमाल बंधा था। निज़ा और प्रिंस ने एक दूसरे का माथा चूम लिया और निज़ा ने प्रिंस को अपने और उज्जवल के दरमियान बिठा दिया। उज्जवल ने खुश दिली से प्रिंस का माथा चूमा और अखिल साथ आ बैठा। हाय स्वीटहार्ट, ठीक हो? प्रिंस ने खुश दिली से अखिल के माथे का बोसा लिया। आपको अचानक देखकर आंखें ठंडी हो गईं, अखिल ने कहा। पढ़ाई पे तवज्जो दो वरना दादाजी जूते से पीठ ठंडी कर देंगे। निज़ा ने सरगोशी की तो प्रिंस, निज़ा, उज्जवल चारों सर जोड़कर धीमा सांसें और पढ़ाई शुरू कर दी। यौवन नायाब की ओट में हो गए थे। बाकी सामने दायरे में थे मगर पढ़ाई पर मुतवज्जा थे। लेकिन कभी नज़रें बचाकर प्रिंस को देख लेते। प्रिंस भी सेम उन लोगों की तरह सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने हुए थे। प्रिंस निज़ा से 2 साल छोटे थे और मैरी के हानी थे। धूप में बेड पर दादाजी के हमरा कुछ मर्द सफ़ेद कपड़ों में पढ़ाई कर रहे थे। 1.25 लाख हैं। प्रिंस ने निज़ा से सरगोशी की। हाँ, लेकिन 3 बार पढ़ाई करनी है, मतलब 3,75,000 दफ़ा पढ़ना है, प्रिंस ने जवाबन कहा। यस, निज़ा ने कहा। चाय आ गई तो पढ़ाई रोक दी गई।
कोई गाल का बोसा ना ले, वुज़ू ख़राब हो जाता है। दादाजी ने तनबीह की तो नायाब ने निज़ा खिला और उज्ज्वल के माथे चूमे और कप उठाए। उठ के और जाकर बेड पर जा बैठे। दादा ने जगह दी। मैं बकिया पढ़ाई आपके साथ करूँगा, वो आहिस्ता से बोले। जो भी प्रिंस से दबता है वो भी नहीं बैठेगा, आप वहीं बैठे। दादा ने कहा। नहीं, नायाब जिद से बोले। चलें ठीक, आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। प्रिंस आहिस्ता से बोले। मी टू, बट दादाजी ने कहा है तवज्जो से पढ़ाई करो। निज़ा ने चाय पीते ज़मीन पर रखा हाथ प्रिंस के हाथ से लगा लिया। दोनों उंगलियों से खेलने लगे। चाय ख़त्म हो गई, फिर पढ़ाई शुरू की गई। ज़ोर हो गई। वही निज़ा ने जमात कराई कि दादा मस्जिद ना जाने देते। नमाज के बाद खाना दिया गया। पढ़ाई फिर शुरू हो गई और इशा के बाद भी 12 से पहले उन्होंने बीजों का ढेर 3 बार पढ़ लिया। निज़ा ने इज्तिमाई दुआ करवाई। मित्रों, अगले संडे को फिर सब जमा हुए। निज़ा ने अब प्रिंस को ना बुलाया कि मुशक्क़त वाला काम था और प्रिंस कोई काम करने के आदी ना। वो बंजर ज़मीन जो अब तक दादाजी ने प्लेन करवा दी थी, उसके चारों तरफ चारदीवारी की जगह छोड़ के 1.25 लाख शीशम के दरख्तों की बुनियाद रख दी गई। बीज गड़े खोद कर लगा दिए गए। उज्ज्वल बेस से डेली वर्कर्स भेज कर पानी दे लेता। बीज जड़ पकड़ गए और मित्रों चंद सालों में तनावर टाली के दरख्त उग आए। एक भी बीज ज़ाया ना हुआ। चार दीवारी बन गई। फिर तने मजबूत हुए तो निज़ा ने कटवा कर मजबूत फर्नीचर बनवाया। घर में फर्नीचर ज़्यादा अरसा ना निकालता, टूट फूट जाता। टाली मजबूत लकड़ी है, निज़ा हमेशा अपना फर्नीचर बनवाता। मित्रों, इस ज़मीन पर फिर निज़ा ने इंस्टीट्यूट बनवाया। इफ्तिताह हुआ तो निज़ा ने कहा, वाकई वाकई बड़े बड़े होते हैं और दूर अंदेश होते हैं। जो दादाजी देख सकते हैं मैं नहीं देख सकता। उन्होंने 4 नस्लों की आबादी का ख्वाब देखा था और पूरा कर दिखाया। दरख्त तनावर हो गए, उन पर बीज आ गए। एक सर्दियों की इतवार की छुट्टी थी तो सब ने वहीं जाने का प्रोग्राम बनाया। नायाब को मौका मिलता तो वो निज़ा के साथ वक्त गुजारते कि निज़ा हाथ ही ना आता। उसकी छुट्टियां मैरी के साथ गुजरती। हाँ, कभी सब मिलकर उसे मजबूर करके ले ही जाते अपने हमरा। टाली की फलियां पकी थी, सब जवान थे। फलियां एक दूसरे को मार मार कर खेलने लगे कि अचानक निज़ा और उज्ज्वल एक साथ चौंक गए। नीचे बैठ के और बीज चुनने लगे। तुमने आवाज़ें सुनी हैं? निज़ा कुछ खौफ खा गया था। हाँ, उज्ज्वल भी डर गया था। दोनों बीज फेंक कर भागे और ओट में खड़े हो गए। फिर दोनों गले लगकर रो पड़े। उज्ज्वल, निज़ा, नायाब एकदम आवाज़ें देते आए तो दोनों उनसे लिपट गए। क्या हुआ? वो उज्ज्वल ने बताया। मुझे और निज़ा को कुछ बीज आकर लगे तो ऐसे लगा वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहे हों। सबने घेरा डालकर दोनों को मला तो दोनों का डर खत्म हुआ। निज़ा, 1.25 लाख दरख्त है, मेरे ज़हन में एक आइडिया है। निज़ा ने पूछा, क्या? तो उज्ज्वल बोला, दरख्त दादाजी ने लगाए हैं, इनकी लकड़ी हमारे काम आती है। इंशाल्लाह बीज भी ज़ाया नहीं होगा। मैं फार्मर से कहकर फार्म में मार्केटिंग करवाऊंगा। नस्ली बीज है, हमारे साथ हमारी नस्लों को भी नफ़ा देगा। और मित्रों, उज्ज्वल ने यूरोपीय ममालिक में शीशम की बीजों की मार्केटिंग करवाई जो बेहद कामयाब रही और बैरूनी मंडियों से पार्टियां आ गई। उज्ज्वल ने मुज़ाकरात किए और सालाना बीज तय कर लिया। वो लोग खुद ही बीज उतार साफ करके ले गए और बहुत मुनासिब रकम इनको मिल गई। यूं सालाना बीज मुल्क से दरामद हुआ तो बैरूनी मंडियों के मालकान भी चौंक गए। दादाजी के लगाए गए दरख्त और उज्ज्वल की गई एक बार की मार्केटिंग ने नस्लों के लिए रिज़्क का बंदोबस्त कर दिया था। वो कहते हैं ना, उनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। बीज मंडियों में चला गया। टाली का बीज मुख्तलिफ अद्वियात भी बनाने के काम आता है और वर्ल्ड फॉरेस्टर भी बीज खरीदते हैं। महकमा जंगलात वाले बीज खरीद लेते हैं और फलियों का छिलका मुर्गी के फीड बनाने वाली कंपनियां उठा के ले जाती। दरख्त फिर साफ सुथरे हो जाते। तनों को चूना कर दिया जाता ताकि कीड़ा ना लगे। बड़े टहनियों से वर्कर झूले बांधे रखते। ये 1.25 लाख दरख्त ऐसे लगता है इंस्टीट्यूट के बॉडी गार्ड हों। वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। कभी निज़ा नायाब से कहता था, आप मुझे फुलाई नहीं लगाने देते कि जिन आते हैं फुलाई पर, तो ये शीशम के दरख्त खुद जिन हैं कि आयत करीमा पढ़ते हैं, फुलाई खामोश तो रहती है।